Now the second class of political theory. We are discussing about political theory's decline. Decline and resurgence, the same topic, but it's containing of two class. First, now we are discussing only about decline, and next class we are discussing about resurgence. And what decline? How the political theory is going to decline? Decline means पतन. एक पॉलिटिकल थ्योरी का पतन किस तरह से हो गया? What is the time of the decline? Firstly, I want to remember that political decline and resurgence is just a debate of it is a political debate. Actually, it is not declining or resurgence. It is a political debate. It is a mere debate regarding some philosophers. Okay, so let's start. During the time of mid 20th century. Okay, during the time of the mid 20th century, some political science topics or some political philosophers questioning about the relevance of a political theory in contemporary time. Particular contemporary time, particularly who? David Stern, the American political scientist, in his book Political System: An Inquiry into the State of Political Science, asserted that traditional political theory was based on mere speculation. Okay, according to David Stern, political theory merely a speculation. Merely a speculation. Speculation means ये जस्ट एक फिलोसोफर के द्वारा लिखी जाने वाली एक कहानी है और जिसका कोई रिलेवेंस आज का टाइम पे नहीं है. तो Stern also pointed out that there has been no outstanding political philosopher after Max and J.S. Mill. According to David Stern, only two political philosophers are exponents, that is called Max and J.S. Mill. Beside them, no one is not so influential. डेविड स्टर्न का मानना ये था कि हम पॉलिटिकल जो थ्योरी का है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, वो ओल्ड अप्रोचेस को फॉलो कर रहा था. तो वो उनका मानना ये है कि ओल्ड अप्रोच को क्यों फॉलो किया जाए, जबकि सेकेंड वाज द फील्ड ऑफ एक्वायर्ड सुइटेबल रिसर्च टूल एंड राइज ऑफ फैसिज्म एंड कम्युनिज्म. जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो जिस टाइम पे ये सब लिखे मिड 1920 सेंचुरी पे, आई थिंक 1950s एंड 1960s, इस टाइम पर फैसिज्म एंड नाजिज्म आर द मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट टाइम, and the traditional political systems are not ready to study about it. That's why he criticized it, and the Second World War economists, psychologists are the perform a big role in decision making rather than political scientists. So that he questioned about the relevance of the political theory. Okay, and the debate on the decline of the political theory, which appeared in 1950s, was also joined by some other prominent philosophers, not about only about David Stern, but other prominent thinkers such as Alfred Cobban. In his paper on the decline of political theory, उन्होंने ये कहा, किसने अल्फ्रेड कोबन, किसने कहा? अल्फ्रेड कोबन. उनका एक बुक था, बुक नेम इज द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने कहा, पॉलिटिकल थ्योरी हैड लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट सिस्टम. कैपिटलिस्ट सिस्टम वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी, वेयर एज देयर इज नो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इन डेमोक्रेसी. अल्फ्रेड कोबन का मानना ये था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग का कोई वैल्यू नहीं है, और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है
वो बेस्ड ऑन लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी, जबकि डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसे थियोरिस्ट नहीं है डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पे। तो कोबन पॉइंटेड आउट दैट हेगेल एंड मैक्स वेयर इंटरेस्टेड इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप मैक्सिज्म को देखोगे, हेगेल का फिलोसफी देखोगे, तो वो एक लिमिटेड एक यूनिवर्स को अपना बिलोंग्स करते हैं, उसके आगे वो सोचते ही नहीं। तो हेगेल वाज प्राइमरली कंसर्न विद द टेरिटोरियल स्टेट एंड मार्क्स वाज कंसर्न ओनली अबाउट proletariat state, and that the difficulties about communitarian systems according to Alfred Cobban. Okay, so next, then Seymour Martin Lipset in his Political Man, who said, who is that? Seymour Martin Lipset in his Political Man, the social basis of politics, argued that the values of the contemporary society had already been decided. ये जो वैल्यू है, वो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो हमारा जो वैल्यू के बारे में सोचता है और कहता है, जो वैल्यू पहले से डिसाइड हो चुका है, और इसको इसीलिए अगर वैल्यू डिसाइड हो चुका है तो दोबारा इसको हम पढ़ के क्या फ़ायदा। फॉर एग्जांपल, हम जस्टिस में देखें कि जस्टिस का ये पोजीशन करेक्ट है, तो वो टाइम के आगे भी जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, टाइम के पीछे भी आएगा तो चेंज नहीं होगा। तो फिर इसको हम आगे हम स्टडी क्यों करें? उसका तो कांस्टेंट फिलोसफी है, वो जहाँ भी जब भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा फिलोसफी रिजल्ट सेम ही देगा। तो हम देखेंगे क्यों इसको, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी प्रिपेंडेड बाय अकॉर्डिंग टू सेमोर मार्टिन लिप्सेट एंड according to Leo Stratus. Who's that? Leo Stratus, in his famous paper What is Political Philosophy, argued that the new science of politics was in fact a symptom of the alleged decline of the political theory. By adopting positivist approach, it had ignored the challenges of normative issues. उनका लियोस्ट्रेटस का मानना ये था कि पॉलिटिकल साइंस डिक्लाइन होने के पीछे और एक अप्रोच का विशेष भूमिका है, जिसका नाम है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म बाय कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। इट इज ए सोशियोलॉजिकल फिलोसॉफी and that is emphasized, that is the main or root philosophy of behavioralism, and that's why the scientific study is considered from there, and for this the traditional political theory was ignored according to Leostratus. So next is Dante Germanio in his Beyond Ideology, the revival of a political theory. Who is that? Dante Germanio in his Beyond Ideology, the revival of a political theory में आर्ग्यू किया था, the most of the 19th century and the early 20th century were two major causes of decline of political theory. ये जो क्या टाइम था, 19th century and early 20th century, ये जो दोनों टाइम के जो पॉलिटिकल साइंस डिक्लाइन हुआ था, उसके पीछे रीजन दो ही बड़ा दिए थे उसने। पहला रीजन था पॉजिटिविज्म, अकॉर्डिंग टू लियोस्ट्रेटस ऑल्सो, दांते जर्मनी ऑल्सो कंसिडर दैट द फर्स्ट रीजन ऑफ पॉजिटिविज्म, एंड सेकेंड रीजन मस्ट बी मैक्सिज्म। मैक्सिज्म, ओके। मैक्सिज्म एंड पॉजिटिविज्म आर द मेन कॉजेस to decline of the political theory according to Dante Germanio. ओके, ये सारे के सारे इसीलिए आपके ये जो स्टेटमेंट और नाम इसके लिए बताया जाता है, जैसे कि ये पॉलिटिकल डिबेट है। अगर डिबेट है जो पॉलिटिकल ओपिनियन ही लिखा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये डिबेट लिखा जाएगा, इसमें से ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एंड दैट इज़ द परफेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाई रीजन। ये हम देख लिए कि
हो चुका है। ये देख ले कि डिक्लाइन कैसे हो गया, कैसे कुछ फिलोसोफर्स इसको डिक्लाइन बता के ट्रेडिशनल फिलोसफी को, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को डिक्लेयर कर दिया। तो हम ये देखेंगे आगे कि रीजन क्या था, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम देखेंगे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। ओके, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, according to David Easton, these four are the reasons of decline. First one, historicism. Historicism means Easton argued that writers like George H. Sabine, C.L. Weffer, A.J. Carley, R.W. Carley, and Lindsay have been the subject to very close to the discipline of history. उनके हिसाब से कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, जिससे मैंने नाम कहा जिनको, वो सब कुछ के कि हिस्ट्री को ज़्यादा एम्फेसिस देता है। एम्फेसिस कहते किसने, वो सब हिस्ट्री को सच नेम आज साबाइन, सीएल वेपर एक्सेट्रा, हिस्ट्री को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। कैसे? He said that traditional political theory was a product of result that characterized the past ages. हम जितने भी नॉर्मेटिव थ्योरी, जितना भी फिलोसफी देख रहा है या पढ़ रहा है, मैं स्टडी कर रहा है, वो सब कुछ ओल्ड एज से आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीस एरा, प्री प्लेटोनिक एरास, प्री अरिस्टोटल, ग्रीस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी रन कर रहा है। और 15 और 12 सेंचुरी का ग्रीस, और कैसे पॉलिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकोजिम को अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन को देखें तो प्लेटो को हम आज भी पढ़ते हैं, ग्रीस का कॉन्सेप्ट को हम आज भी पढ़ते हैं, और फ्रांस रिवॉल्यूशन को आज भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को भी आज भी पढ़ते हैं, और इटली का फिलोसफी वो आज भी पढ़ते हैं, जिसको कंटेम्प्रेरी टाइम पे कोई भी रिलेवेंस नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, डेविड ईस्टन कह रहे हैं। तो इसलिए ही हैड नो रिलेवेंस इन सेंचुरी सोसाइटी, दैट वाज फर्स्ट हिस्टोरिकिज्म इज द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन। ओके, जो हिस्टोरी को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है। एंड सेकेंड वाज मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म मीन्स ट्रेडिशनल फिलोसफी फोकस ऑन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, moral values. That moral values does not consider in contemporary time as the basic concept. There is no moral value in political theory, so that moral relativism means moral values are the major reason behind the decline of political theory. And third one, confusion between the science and theory. ये जो confusion हमेशा लगा रहता है कि व्हाट इज साइंस एंड थ्योरी। हम किसको थ्योरी के हिसाब से कंसीडर करें और किसको साइंस के हिसाब से कंसीडर करें, ये जो डिबेट हमेशा कन्फ्यूजन चलता रहता है। ये इसमें क्या भंग होता है? इंटेग्रिटी भंग होता है। इंटेग्रिटी डिवाइड होता है। दैट्स द अनदर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एंड फोर्थ वन इज हाइपर फैक्चुअलिज्म। Hyperfactualism means over facts under theorization, over facts under theorization। वो जितना फैक्ट चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी उसके ज़्यादा फैक्ट प्रोवाइड करता है। इतने फैक्ट्स को रिलेवेंस ही नहीं कुछ। अगर हम एक या दो फैक्ट्स या फिर जो ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसी फैक्ट को हम कंसीडर करें तभी वो एक कंप्लीट और कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम के नाम पे जाना जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनल पे आप देखेंगे कि एक के बाद एक वेरियस फैक्ट्स पढ़े हैं, कितने को याद किया जाए। इसलिए हाइपर फैक्चुअलिज्म इज अनदर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन।
ओके, क्लियर। तो ये था आपका डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी। सो जो डिक्लाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे हम कुछ न्यूट्रिशल हम कुछ संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स दैट मे बी हेल्पफुल फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट बट ऑल्सो अदर एग्जाम्स। Cobban and Easton speak political theory is decline. Okay, Cobban and Easton speak political theory is decline. Lipset and Dahl proclaimed political philosophy is dead. Lipset and Dahl proclaim political theory is dead. Seymour referred the political theory being in the doghouse. Who said? Seymour. Seymour refers to the political philosophy by political theory being in the doghouse. Seymour Martin Lipset to question the continued relevance of political theory in those days. Okay, these are the concept, these are the topic of the decline of the political theory. Next class we going to discuss about the resurgence. Okay, note it, and तब तक के लिए अलविदा।